Namaste, everyone, and welcome back to Season 3, Episode 1 of Pusa Podcast, The Future Speaks. Today, I am your host, Priya Sonwal, a student of BSc HHA third year, IHM Pusa, India's premier hospitality institute. And today, we are joined by a student of IHM Pusa third year who is also an NCHM CT JEE 2023 rank holder, Mr. Ronak Rajesh. So, Ronak, for the audience, who are you and why you are here? Thank you, Priya, for that introduction. So, hello everyone. My name is Ronak Rajesh. I am a third year student here at IHM Pusa, and I'm really glad to be on the podcast. सो रौनक टेल मी अभी मैं 12th क्लास में हूँ और मेरे बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं बट आई एम स्टिल वेरी अनक्लियर अबाउट व्हाट आई शुड डू इन माय करियर हाउ शुड आई बिगिन विद इट मुझे कहीं से एडवाइस भी नहीं मिल रहा है एंड इवन माय फ्रेंड्स आर नॉट हेल्पिंग मच सो व्हाट इज योर अनफिल्टर्ड एंड क्लियर एडवाइस टू देम I was in this exact same place a few years ago. So, I think as of 2026, what a student should do right now is to study the current environment. तो अभी के ट्रेंड्स देखो एंड अभी क्या चल रहा है सो राइट नाउ एज वी कैन सी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एब्सोल्युटली बूमिंग and राइट it is replacing jobs in every sector. So we need to find a sector, we need to find an industry where AI cannot replace us so that, for the longevity, right? सो डू यू बिलीव दैट दिस इंडस्ट्री द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज irreplaceable by AI? Absolutely. I mean, human beings and the human connection is the main soul of hospitality. So AI can never take its place. It is definitely helpful, but it will never take its place. I would really like to focus on the part that is also the tourism industry is also blooming right now. Mhm. So and the contribution to GDP, right? Absolutely. The tourism and hotel industry basically contributes to 6 to 8%. 6 to 8% is a pretty impressive Yes, number, I 6 believe. to 8% of the country's GDP. Right. Right. So it is a booming sector, and we have seen in the past also after COVID-19, it always bounces back. It'll Right. never stop. It never gets stopped, and the requirement for employees and the requirement for manpower is always going to be stagnant. Right, right. तो तुमने क्या सोचा था अपने 11th 12th में तुम्हें क्या करना था? तुम्हारा मन हमेशा से इस इंडस्ट्री में आने का था या पहले कुछ और था मन? तो मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में अंटिल क्लास 12 नहीं पता था. Okay. So I'll tell you about myself. When I was young, I used to watch a lot of travel vlogs and a lot of TV shows like Chef Sanjeev Kapoor's Khana Khazana, Right, Food, right. TLC. right? Yes, we used to watch these travel documentaries and these cooking shows, and that is when my interest for culinary started. Okay. So from a young age, I was inclined towards culinary and this profession. So I was interested. Then came my class 12 phase where I realized कि अगर इस इंडस्ट्री में घुसना है तो मैं करूँ क्या. So that is when I really started searching, and that's when I came across this course called hotel management. तो तुम्हें ये कहाँ से पता चला? गूगल से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट? Right. So if we want to get information about anything, what do? We just Google it. We just Google. So मैंने Google किया about this profession. I said कि I want to be this. So what do I do ahead? So the first suggestion was hotel management or hospitality administration. So again, my next question was, which is the best place to do it from? Right. So that is when I got a list, an entire list by India Today. It is an official publication. So I got a list of the top institutes, and IHM Pusa sits at number 1. So I was like कि देखो करना है तो IHM बहुत Pusa टाइम से से करना यही है. है. It's been sitting on number 1. It's been sitting on number 1 for a couple of more than a decade now. So IHM Pusa के बारे में देखा, वो मुझे तब पता चला. तो IHM Pusa के बारे में देखा, and then I wanted to research more. That's when I Right. came across their Instagram page. Oh, okay. And Instagram page pe I saw that they do a lot of events, and it is actually a number 1 institute because there are so many chefs coming in and Right. events going all around. So I was like, this is the college life I want. And also another thing I saw on that Instagram page was there was a link. So that link was towards an exam called NCHM CT JEE. Would you like to tell us what it exactly is? Right. So NCHM CT JEE stands for the National Council for Hotel Management, Catering and Technology Joint Entrance Examination. And NCHM CT के बारे में बता दूं पहले, that is an autonomous body under the Ministry of Tourism, Government of Okay. India. And they partner along with NTA, the National Testing Agency, and they conduct this JEE exam, All right. which is an all India exam for students who are interested for enrolling in the top institutes of the country for hotel management. Okay, तो क्या क्या होता है इस एग्जाम में? मतलब क्या क्या आता है? So before we go into that, I'll explain the eligibility criteria. So the eligibility criteria for NCHM CT is you need to be a 10+2 graduate with 60% or more in English.
and there is no age limit for Oh, anything. तो कोई भी दे सकता है ये. Absolutely, कोई भी But दे English सकता है. compulsory है? English is compulsory because we Alright. need communication skills, right? Right. तो क्या-क्या components होते हैं इस एग्जाम के? So the NCHM-CT exam has 5 components, 5 major sections होते हैं जो. सबसे पहला आता है हमारी numerical ability, which is maths. So basic maths होती है. I'll elaborate more on this later. The second component is logical reasoning, right? So it tests your analytical ability, कैसे आप situations को comprehend करते हो ये वो. Third is general knowledge and current affairs, which are again general knowledge कि आपको aware हो कि नहीं कि क्या हो रहा है. Fourth is English communication, basic आपकी English कैसी है, आप बोलते कैसे हो. And the fifth and final is service aptitude. So these are the 5 components, and इसमें इनके marking scheme भी होती है कि each correct answer will give you 4 marks and each wrong answer will give you a negative marking. So you have to be very careful while answering. Right. तो इस एग्जाम को भरने के लिए फॉर्म होता है एक, राइट? तो इस Right. फॉर्म की फी भी होती होगी और इज इट फ्री? So the form is available for students at rupees 1000 for general category, and for other reserved candidates it goes below up to rupees 450 as well. तो रौनक, तुम्हारी इस एग्जाम में NCHM-CT में कितनी रैंक आई थी? तो NCHM-CT 2023 में I had scored an all India rank of 34. 34 इज अ प्रीटी इम्प्रेसिव रैंक, आई मीन. तो तुम प्लीज़ बताओ, अब इलैबोरेट कर सकते हो ढंग से कि क्या-क्या सेक्शंस होते हैं एंड हाउ मच वेटेज डू दे कैरी? Okay, so like I had said कि 5 सेक्शन होते हैं. So I'll start with the first one, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है स्टूडेंट्स को, which is the numerical ability वाला न्यूमेरिकल sector. एबिलिटी. Yes. So this section has 15 questions. In fact अभी कम कर दिया गया. 15 questions होते हैं, and इसमें questions आते हैं like speed, distance, time के, ratio and proportion के, time and work के. Time and work example I'll give you कि like X does a work in 15 days and Y does a work in 20 days. So दोनों कितने दिन में साथ में काम कर सकते हो. So things like that. तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ये घुमा फिरा के आता है, यू नो द नेचर ऑफ मैथ्स. तो इसलिए स्टूडेंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस, एंड फिर वो दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेक्शन. सो ये हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी, राइट. देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो हैज़ 15 क्वेश्चंस, एंड इसमें क्वेश्चंस आते हैं थिंग्स लाइक यू नो सीटिंग ऑर्डर, या फिर हमारी यू नो डायरेक्शंस को लेके, एनीथिंग दैट विल टेस्ट योर लॉजिकल एप्टीट्यूड, राइट. सो अगेन दिस ऑल्सो इज टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि इसमें पैटर्न्स ढूंढने पड़ते हैं, वेन डायग्राम्स होते हैं. सो दिस आर ऑल मिक्स एंड मैच करके दिए हुए हैं. सो अगेन दिस इज ऑल्सो टाइम टेकिंग, सो दिस इज कम्स अंडर द सेकेंड कैटेगरी, राइट. तो इसमें भी 15 क्वेश्चंस, सेम टाइम. ओके, देन थर्ड कैटेगरी इज द जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. नाउ ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें अगर आपको आंसर पता है तो इमीडिएटली यू आर थ्रू. तो जनरल नॉलेज में ये आता है लाइक थिंग्स अबाउट द कंट्री, वर्ल्ड लीडर्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, एंड मतलब हिस्ट्री के बारे में जो भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें होती है मोस्टली. एंड करंट अफेयर्स में जो अभी करेंटली हो रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स इज इन्वॉल्व एंड अदर कंट्रीज आर इन्वॉल्व, तो उनमें अभी तक क्या अपडेट्स आए हैं, क्यों क्या न्यू पॉलिसीज़ आई हैं, गवर्नमेंट ने क्या न्यू इंट्रोड्यूस किया है, दीज थिंग्स कम अंडर करंट अफेयर्स. नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, बट इट्स नॉट टाइम टेकिंग अगर आपको कॉन्फिडेंस है, विच इज़ द इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन वाला सेक्शन. सो इसमें हमारे अराउंड 45 क्वेश्चंस आते हैं, राइट. एंड आई एम सॉरी, इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें वी टेस्ट योर वर्बल एबिलिटी कि आपको पता है कि कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, आपको पता है कि कौन सा वर्ब कहाँ यूज़ करना है, हाउ डू यू क्रिएट सेंटेंसेस. एंड इसमें एक और टाइम टेकिंग पार्ट एलिमेंट जो आती है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, राइट. सो जैसे आई मीन वी ऑल्सो हैव फेस नो कि वो बड़ा सा पैराग्राफ होता है एंड देन देर आर 4 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, राइट. तो वो सब पैराग्राफ से रिलेटेड है. सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट पैराग्राफ यू विल get it. तो इसका टोटल स्कोर कितना हो गया इस पूरे एग्जाम का? So the total score right now is 480 marks का आता 480 है, marks, right? If you right. get all correct, 120 questions total. So that brings me to the last section, which is the service aptitude sector, right? तो इसमें 45 questions आते हैं, and this tests your service aptitude. मतलब आपके अंदर वो hospitality का वो है कि नहीं, attitude है कि नहीं. So this will test your presence of mind. कि आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा एंड यू विल बी गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स. सो यू हैव टू चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स. इस सेक्शन का क्या है कि देयर इज नो करेक्ट और रॉन्ग आंसर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. देयर इज ओनली मोस्ट करेक्ट एंड द मोस्ट इनकरेक्ट वाला आंसर, राइट. सो दैट इज द, तुम्हें जो सही लग रहा है उस हिसाब से करना उस हिसाब से right? करना है एंड उस हिसाब से आपकी ग्रेडिंग होगी. तो ये जो NCHM-CT का स्कोर होता है, ये हाँ जी. कितने इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट करते हैं?
तो NCHMCT का स्कोर जो है वो मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस एक्सेप्ट करती हैं, देयर आर अबाउट 80 और सो कॉलेजेस ऑल टॉप ओवर द आइटम्स कंट्री. तो आई गेस सारे करते होंगे. यस, टॉप IHMs करते हैं विथ पूसा बीइंग एट द टॉप. तो इसलिए इसका कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा हाई है एंड Right. कंपटीशन भी काफ़ी हाई है. सो अभी आप देख सकते हो जनवरी का टाइम चल रहा है, तो जी. ज़्यादा टाइम तो हमारे पास है नहीं. नहीं. सिंस जनवरी 25 को एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे एंड अप्रैल में एग्ज़ाम है इसका, तो Right. हमारे पास मेजरली 3 महीने बच गए हैं. हम्म. तो हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर दिस, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस तो ज़्यादा है ही जैसे तुमने बताया. तो हम्म. हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर दिस, तुमने कैसे प्रिपेयर किया था? ठीक है, सो आई टेल अबाउट माय सिचुएशन. तो मेरे बोर्ड एग्जाम्स और NCHMCT JEE एग्जाम के बीच में ठीक 1 महीने का गैप था, एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. तो द फर्स्ट स्टेप दैट आई थिंक स्टूडेंट्स शुड डू अभी इज़ टू इंक्वायर एंड टू फाइंड आउट कि NCHMCT JEE का पेपर दिखता कैसा है, कि उसमें कौन से सेक्शंस होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं. वो कैसे होगा, दैट यू विल अंडरस्टैंड बाय एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, मॉक क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करके, क्योंकि उसमें पैटर्न प्रीटी मच सेम रहता है. मॉक पेपर्स कहाँ मिलेंगे बच्चों को? मुझे मॉक पेपर्स 2 जगह से मिली थी. एक तो ऑनलाइन मिल जाती है फ्रॉम द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट, तो दैट इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट, और वहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हो. सो 2 Alright. आवर्स का जो एग्ज़ाम होता है, यू कैन टेक द मॉक टेस्ट एंड टेस्ट कि आप कर सकते हो कि नहीं, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. राइट, तो वो वेबसाइट पे मिल जाएगा तुम्हें? वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे, बाकी वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे, पर आपको साइन अप करना पड़ेगा. तो इट्स बेटर टू विजिट द NTA, द गवर्नमेंट वाली वेबसाइट. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको गाइड्स में भी मिल जाएंगी मॉक क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, जैसे मैंने किया था. गाइड्स ऑल्सो आर अवेलेबल, काफ़ी सारे गाइड्स अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर. आप 2026 वाला वर्जन देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा अपडेटेड वही होता है. मैंने भी अपने टाइम की ली थी, एंड दैट इज़ वेयर आई प्रैक्टिस्ड. एंड फर्स्ट आपको पैटर्न के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा, तभी आप क्विकली आंसर कर पाओगे. डू यू थिंक कोचिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम? जैसे तुमने देखा होगा बहुत बच्चे 11 से कोचिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं फॉर Right. IIT JEE, तो इस हाँ. एग्जाम के लिए डू यू थिंक इट्स रिक्वायर्ड? I agree it's a JEE exam, but for hospitality मतलब NCHMCT JEE कोचिंग तो ज़रूरत नहीं है. नहीं है. Only if you are able to give at least 1.5 to 2 hours every day And if you're without. solving maximum number of mock papers, Yes, right? that is also very important कि आप 1.5 से 2 घंटा दें और एटलीस्ट 1 या 2 मॉक पेपर रोज़ सॉल्व कर लें, तो आपको एक अकस्टम हो जाओगे आप एग्ज़ाम से और पैटर्न से, और आपको कंफर्टेबल भी हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दैट पीरियड. सो अभी ये सब हमने पूरा प्रैक्टिस कर लिया. जी. एग्जाम वाले दिन, जिस दिन हमारा एग्जाम है, उस दिन हाउ शुड वी गो अहेड सो टू प्रिपेयर अ गुड रैंक? ओके, सो टू प्रिपेयर अ गुड रैंक आपको मेंटली तो प्रिपेयर होना ही पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि जो होगा सो होगा. इफ़ योर प्रिपरेशन, जो आपने 1 महीने में आपने एफर्ट्स डाली हैं, आपने सॉल्व किए हैं, आपको पता है कि क्या आ रहा है, तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इंश्योर्स कि आपका मोस्ट ऑफ योर वर्क इज़ डन, राइट. तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. शांति से जाइए, एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली डन. यू डोंट हैव टू कैरी एनीथिंग, पेन पेपर नथिंग. एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड टू यू on the day of the exam, and it's a computer based exam like I said, so काफ़ी convenient भी होता है. System crash, nothing, none of that, so you don't have to worry about anything, it's all taken care of. And other things you have to do is कि एक तो आपको venue में जल्दी पहुंचना पड़ेगा. You have to reach at least an hour before to avoid any of the rush. And you also have to carry your important documents like Aadhaar, like your admission ticket. तो ये सब की list आती है NTA से. So they will publish it just a few days before the exam, so you can cross check with that and you can go और forward. एग्जाम सेंटर की अलॉटमेंट जो होती है वो कैसे होती है? ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैं दिल्ली में रह रही हूँ वो मुझे यूपी में एग्जाम करने को भेज दे या फिर हरियाणा में भेज दे, ऐसा होना के चांसेस हैं? नहीं, चांसेस नहीं होंगे, बिकॉज आपको एक ऑप्शन मिलती है. सो ऑब्वियसली यू हैव टू सिलेक्ट 4 प्रेफरेंसेस. Okay. तो जो आपसे सबसे करीब नज़दीकी आपकी जो सेंटर है, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं. बट Okay. आपको 3 और ऑप्शंस देना पड़ेगा, जहाँ अगर वहाँ वैकेंसी Availability ना रही, होगी तो. हाँ, Right. तो आपको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा. बट ऑब्वियसली यू हैव एन ऑप्शन टू चूज़ कि आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहती हैं. वेल, थैंक यू सो मच रौनक फॉर बीइंग विद अस टुडे. आई होप आप सभी को एक ओवरव्यू मिल गया होगा ऑफ द एग्जाम पैटर्न, एक ब्रीफ मिल गया होगा. आप सभी के हेल्प के लिए हमने एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसका डेडलाइन है 25 जनवरी 5 PM. सो मेक श्योर दैट यू अप्लाई टू इट बिफोर दैट. फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज, डू फॉलो IHM Pusa podcast and subscribe to all our social media handles. Thank you.